Yes, I want to know. I'm repeating my questions here. I want to know something about your examination days. What is your perception? What are your beliefs? How do you actually feel during the examination days? And obviously, I'm talking about the school examination days. Okay? So, Faiza. Sir, Sir, usually usually I I feel feel really really tired tired and and I'm I'm waiting waiting for for the the day day the the exams exams finish, finish. and I And feel I like feel like they're 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 quite a quite a burden. burden. And And sometimes the sometimes the teachers teachers leave leave some some material that material has that not has been not been properly properly explained, explained, and and then there's then a lot there's a of lot of problem. problem. So how do you handle all your matters? Let's suppose if I'm talking about such topic which was not explained during the sessions in the school, but it unfortunately uh, like popped out in the examination. So what are your feelings at that moment? How do you feel about this? I feel I feel very very angry. angry. Wow. Then how do you control your anger? Sir, I Sir, I usually drink usually drink water and I water and take I deep take deep breaths and breaths and remind remind myself that myself I that don't I have don't to be have to be angry. angry. Okay. And what are the other problems that you like feel that you think you told me that you always pray for these examination days to get over quickly. So obviously the examination days are not only 1, 2, or 3 days. It's more than 2 weeks. We can say that minimum more than 2 weeks. So in between these 2 weeks or these the 10 days or 8 days, how do you manage? How do you manage all those like all those difficult days of examination? How do you study? What are your schedules? Tell me about it. Sir, Sir, I I usually usually start start ranting to my ranting to mom my mom about the about the difficulty, difficulty, and and I and I usually usually discuss some discuss some topics topics that have that have some some and and I tell I her to tell her to explain some explain stuff some to me stuff to me so that so it that becomes it becomes easier for me easier to for me to study that study that topic. topic. Hmm. And And Yeah. basically basically, that. That's good. That's good. Okay, fine, fine, fine. This makes like this brings a little bit ease to you toward your preparations or toward the jitters that usually we have it during the examination. Well, it is a nice word. I'm just putting it into the chat column over here. Okay, it is jitters jitters. Okay, I just put it into the message column here in call messages. सो जिटर्स का मतलब होता है लाइक थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी होना वी कैन से दैट इज एनजाइटी इज अ फॉर्म ऑफ एनजाइटी ठीक है एनजाइटीज लेवल और जिटर्स में से फ़र्क इतना है कि एनजाइटी वी कैन से दैट अबाउट 100% एंड जिटर्स इज ऑल अबाउट 70% ठीक है यानी बेचैनी सी होना so that is all about jitters so the examination jitters I know that they are quite painful somewhat okay जी खजर साहब what is your perspective about it? We have discussed, you know that क्या हम discuss कर रहे हैं जी over to you Mr. Khazar. जी बेटा खजर give me your feedback about the examination days जी बेटा Sir, I sir, I feel feel so so stressful and stressful and pressure. pressure. and how do you control all those stress and pressure सर बाहर मैं बाहर आवारागर्दी आवारागर्दी करते हैं. करती बाहर आवारागर्दी करते हैं ओके सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आवारागर्दी करना ठीक है इसको अगर फॉर्मल क्योंकि जाहिर सी बात है तुमको फॉर्मल वे में ही फॉर्मल अंदाज में ही इसको जो है बयान करना है और वो है तुम्हारा लाइक एक तो हम कहते हैं लाइक जो फॉर्मल अंदाज में मैं वही बता दे रहा हूँ उसे हम कहते हैं वैंडर अबाउट WANDER. I prefer to wander about in order to control my stress level during the examination. ठीक है सही जी so
और अगर इनफॉर्मल वे में बोलोगे तो मट, अगर लेट सपोज तुमको दोबारा इस अल्फाज को उसी राइटिंग में इस्तेमाल करना हुआ, so obviously then you cannot use the word vendor about, then you need to use the word like I muttered here and there, right? I fool around, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है जो like मुझे याद आ गया अचानक, fool around means moving here and there without any real purpose, ठीक है, जिसे हम मटर गश्ती कहते हैं। ठीक है जी, आगे बोलो खिजर। जी बेटा, हाउ डू यू लाइक एग्जामिनेशन डेज किस तरह कंट्रोल करते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? एज फाइजा टोल्ड के व्हेन सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कम्स व्हिच द टीचर्स नेवर टीचर्स अस, और वो आ जाता है, स्पेशली हम साइंस में देखते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में देखते हैं, तो कैसा लगता है? देखो लिटरेचर में तो तुम बोल नहीं सकते, लिटरेचर में तो यू नो फायजा, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी डू इन द लिटरेचर पार्ट? कितने क्वेश्चंस करते हैं खिजर ओवरऑल, जरा बताओ, हमने लिटरेचर में लास्ट टाइम कितने क्वेश्चंस किए थे, बताओ जरा। सर और 5-6 5 6 होते होते ही होते हैं। 5-6 खिजर, शी इज सेइंग 5-6 200 250 200, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस वी सर डिड। सर वो वो 5-6 5 6 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन में भी कितने कितने ज्यादा ज्यादा पार्ट्स पार्ट्स होते हैं। होते हैं। नहीं वो है, लेकिन इवन पार्ट्स को तो छोड़ दो, लाइक आई जनरली टीच देम पार्ट बाय पार्ट ना, उसका हर एक पार्ट का डिफरेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग, इट इज नॉट डिपेंडिंग एवरी टाइम वी आर गोइंग फॉर द लॉन्ग सॉर्ट ऑफ थिंग, हम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिला के करते हैं, बट लिटरली आई वी कवर द होल नॉवल, लिटरेचर में पूरा नॉवल, हमारे पास नॉवल क्या है, अल्केमिस्ट, अभी भी यही होगा, लेकिन लाइक खिजर नॉट विद यू, ठीक है, अब नहीं होगा, सिर्फ यू विल बी हैविंग लैंग्वेज ओनली। तो अल्केमिस्ट का हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई गेस 200 क्वेश्चंस और अबव क्वेश्चंस था हमारा, which was what we like generally prepared, and nobody could say, everybody got very good marks in the literature because everybody has uh, read everything। तो भाई लिटरेचर तो छोड़ दो, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का बताओ खिजर, व्हाट आर द स्ट्रेस लेवल्स एट दैट मोमेंट? स्ट्रेस हम लेते ही नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेते, चलो ठीक है, तो जो फेल जो होते हो वो क्या होता है सर फेल हो गए तो उसके बाद का पता। फिर? अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो व्हाट्सोएवर, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन डेज, एंड ऐसे हम ओरिजिनली कहते हैं, ये नाम आ सकता है, अगेन आई एम राइटिंग इट इनटू द लाइक चैट बॉक्स हियर, हम इसे कहते हैं एग्जामिनेशन ब्लू, BLUES, examination blues, this is what we call, means all the छोटे मोटे matters, all the regular matters of examination, उसमें stress है, उसमें anxiety है, उसमें confusion है, उसमें angriness है, तो तमाम चीज़ों को हम मिला मिलू कर examination blues के बारे में बात। So today we are going to basically talk about the examination blues, okay? So मूविंग टूवर्ड इट, फर्स्ट लेट मी गिव यू द PDF, ठीक है, उसको तुम लोग ओपन करोगे, मैं भी यहाँ से शेयर करूंगा स्क्रीन, और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है, लेट मी शेयर इट। हाय, ओके जनाब, देख लो मैंने शेयर किया है, अभी नहीं मिला, अब ओके गॉट इट, मिल गया होगा आप लोगों को, देखो ठीक है, सो ओपन इट अप। एग्जामिनेशन डेज जैसे ही ओपन होगा, यू विल फाइंड इट आउट, आई हैव टू एक्सप्लेन यू समथिंग टुडे, उसके बाद फिर तुम लोग मुझे अपनी सारी बातें बताओगे, ठीक है? अच्छा, व्हेन इट इज ओपन डू लेट मी नो, रेज योर हैंड व्हेन इट इज ओपन। When you would have opened the file, raise your hand on the screen. Okay, fine. Khizar, जब ओपन हो जाए raise your hand.
जी बेटा खजर ओपन हो गया? Yes, sir. ओके जी, चलो जी। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन हियर। ओके जी। सो अब देखो, द एग्जामिनेशन डेज वोकैबुलरी लिस्ट विद मीनिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब थोड़े थोड़े लाइक इजी वर्ड्स है, बट इसका थोड़ा सा एक अनदर वे में यू आर सपोज टू यूज इट। अब मैं एक छोटी सी ग्रामर भी बताऊंगा तुम लोगों को। एंशियस तो पता है, प्रिपरेशन, रिवाइज्ड, अलार्म क्लॉक, पेंसिल केस जिसको हम पेंसिल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अनदर अच्छा नाम है ये पेंसिल केस, राइट। अच्छा जी। क्वेश्चन पेपर है, फोकस्ड है, क्लॉक ticking, yeah, it's an informal word though you can use it in a formal manner. Clock ticking means the sound of the time passing quickly, right? इसे usually quickly के लिए ही यूज किया जाता है इस फ्रेज को। हार्ट बीटिंग रेस, वेरी गुड फ्रेज है ये, ठीक है। हार्ट बीटिंग रेस means when your heart beats very fast from the nerve for the from nervousness, ठीक है। नर्वसनेस से जब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज हो जाती है। और वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड एंशियसनेस, ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है ये वाला, वी कैन ऑल्सो यूज इट। ब्लैंक माइंड, ये ब्लैंक माइंड नहीं होगा एट दैट मोमेंट वाइल यू विल बी राइटिंग, ठीक है। तो आप इसको यूज करोगे ब्लैक माइंडेड, ईडी लगा दोगे। ईडी लगाने से ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या चीज होती है? कंपाउंड एडजेक्टिव मैं बड़ा बड़ा शॉर्टली इसको लेकर चलूंगा, जैसा गौर से समझना, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स इज बेसिकली टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हमेशा जो सेकंड वाला एडजेक्टिव्स हम लिख रहे होते हैं उसको हमेशा हम ईडी में लिख रहे होते हैं। एंड व्हाई डू वी यूज कंपाउंड एडजेक्टिव्स? We always use compound adjectives in order to like you can say put more stress toward the quality of that word, or to bring some intensity in the meaning. For example, एक है word blank, एक है mind. So मैं बिल्कुल blank mind हो गया था, so at that moment तो मैं black mind हो गया था बोल दिया, but actually it is not right. मैं actually बिल्कुल black minded हो गया था। सही है। दो एडजेक्टिव सिमिल्टेनियसली, शॉर्टली आप इसको इस तरह कर सकते हो, याद रख सकते हो कि whenever you are using two different adjectives simultaneously, ठीक है। तो आप यहाँ पे शायद सोच रहे होगे माइंड तो नाउन है, माइंड तो एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइंड एज एन एलिट्रेशन के तौर पे यूज किया गया जिसकी मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो मैं ब्लैंक माइंडेड हो गया था, इसका मतलब है मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था, मैं बिल्कुल खाली हो गया था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल निल हो गया था, ठीक है। ईडी, राइट। अच्छा, इन्विजिलेटर पता है, नीट हैंड राइटिंग, राइट, ये भी पता है तुम लोगों को। फाइनल बेल, रिलीव्ड एंड मेमोरेबल, ये तो एक नॉर्मल से विकैबुलरीज थे जो तुम्हारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, ये तुम यूज करो ना करो, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन इसमें से कुछ कहते हैं डिफिकल्ट विकैबुलरीज अगर यूज करो तो इट विल बी मच बेटर, जो कि फ्रेजेस हैं खास तौर पे। हार्ट बीट हो गया, ठीक है, और नीट हैंड राइटिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा पेंसिल केस हो गया, ये सब चीज़ें अगर यूज करोगे थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइक सेंटेंसेस की तरफ भी देख लेते हैं। ये सेंटेंसेस तुमको थोड़ी सी हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू मेक न्यू सेंटेंसेस और आइडियाज, इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू आइडिया। अभी ये सिर्फ बच्चों वाली चीज़ें अभी मैंने दी हैं, सिर्फ आइडिया को क्लियर करने के लिए मैंने दिया है और कुछ नहीं किया इधर, ठीक है। मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, ये सिर्फ तुम लोगों की इजीनेस के लिए मैंने किया है काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मॉडल ऐसे मैंने दे दिया है ऑलमोस्ट 8 to 9 सेंटेंसेस का। ये भी बिल्कुल चाइल्डिश वाला मॉडल ऐसे है, तो कोई लाइक इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इनको फॉलो करते हुए यू पीपल आर सपोज टू राइट वन स्मॉल पैराग्राफ रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन डेज, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिखो और उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछो, रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन, और नहीं है सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी माय डियर, रेज योर हैंड और डायरेक्टली अनम्यूट योर माइक, यू कैन एंड डायरेक्टली टॉक टू मी, कोई मसला नहीं है। जी बेटा, नो क्वेश्चंस? Better, no questions.
So start your writing. You have got 7 to 10 minutes in order to produce some writing. Let me give you some बल्कि मैं चाहूँगा कि तुम लोग थोड़ा difficult vocabularies use करो डिक्शनरी यूज करते हुए. मैं एक लिंक दे रहा हूँ तुम लोगों को, उस लिंक के साथ तुम लोग डिक्शनरी यूज करो. वेट एक मिनट, मुझे जरा सा एक 2 मिनट दो. आई एम जस्ट गिविंग यू दैट लिंक. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट माय डियर. बस जी मैं ये दे दिया आपको. अब इस ट्राई टू यूज दिस लाइक डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑलवेज वेन एवर यू आर वर्किंग. ठीक है, इवन अपने लाइक अपने एकेडमिक्स में भी तुम लोग इसको यूज कर सकते हो. आई एम गिविंग इट इन टू द लाइक व्हाट्सएप ग्रुप. देखो इसको यूज करते हुए तुम लोग, और इट्स द बेस्ट डिक्शनरीज एवर. हर चीज को यहाँ पे आपके पास मौजूद है. ठीक है, अच्छा बल्कि एक काम करते हैं, सुनो. वेट अभी लिखो नहीं. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड माई डिक्शनरी इज ऑलरेडी ओपनड ओवर हियर. मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, हाउ टू यूज इट इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, अच्छा इसको मैं ज़रा शेयर कर लूँ स्क्रीन. ज़रा स्क्रीन पे देखना है स्टूडेंट्स. ठीक है, और इसको किस तरह प्रॉपरली यूज़ करना है, देन आई विल बी एबल टू लेट यू नो. और तुमको इसको हमेशा यूज़ करते रहना है. ठीक है, इससे योर इंग्लिश विल गो अप टू द नेक्स्ट लेवल ऑब्वियसली. ठीक है, अच्छा डियर, हियर वी हैव गॉट, अरे यार ये कहाँ से आ गया. हाँ, वी हैव गॉट वन प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेट. मुझे इसकी मीनिंग फाइंड आउट करनी है भाई. चाहिए, अब मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं वर्ड लिखा प्रोक्रेस्टिनेट लिखा, मीनिंग फाइंड आउट कर लिया, दैट इज द एंड ऑफ माय वर्ल्ड. ऐसा कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट. ठीक है, सो what you're supposed to do when the word will come, आ रहा है ये. okay, here procrastinate, you need to check the pronunciations of UK and US base. ये देख लो दोनों. ठीक है, बेहतर है कि आप UK लाइक करो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूके करो, यूएस बेस करो, कुछ भी. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट, आई एम क्लिकिंग इट. वेट, प्रोक्रेस्टिनेट. ठीक है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन चेक करो उसका. Procrastinate. ठीक है, दिस इज इट. राइट, चेक कर लिया. अब ये जो कहलाती है ना, दिस इज नोन एज फेनेटिक सिंबल. इसकी मैं अलग कभी क्लास लूंगा फेनेटिक सिंबल्स की. ठीक है, हाउ टू जनरेट द प्रोनाउंसिएशंस. राइट, तो इसके लिए फिर तुमको जो है वो लिसन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को. तुम इसको देखते हुए डायरेक्टली साउंड जनरेट कर लोगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इसकी मीनिंग्स आपके पास आ गई, जो भी मीनिंग्स हैं. देन यू हैव गॉट रिलेटिव सेंटेंसेस हियर. ये रिलेटिव सेंटेंसेस विल ऑलवेज हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेमोराइज द वर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा फिर आपके पास दूसरे चीजें आ जाएंगी प्रोक्रेस्टिनेट की. बाकी भी देखो चीजें, यहाँ बहुत सारे डिफरेंट सजेशंस गिवन है. ठीक है, ट्राई, टाइम मिला तो कभी इसको लाइक ट्राई करना, यानी डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस गिवन है ऑन अ डिफरेंट लाइक वे में. राइट, अच्छा वापस मैं ऊपर आता हूँ. अब यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट आपने देख लिया, आपने साउंड चेक कर लिया. आपने साउंड चेक करने के बाद ये देखो कि भाई ये क्या है. इट्स अ वर्ब, प्रोक्रेस्टिनेट. अब मैं इसका देखूंगा कि भाई इसकी बाकी चीजें सिनोनिम्स वगैरह क्या हैं. सिनोनिम्स ये है लाइक डिली डैली, बट इट्स एन ओल्ड फैशन. जहां पर ये ओल्ड फैशन लिखा हो और इनफॉर्मल लिखा हो, थोड़े से हाथ ऊपर कर लेना, थोड़े से स्टॉप हो जाना, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है. वी कैन नॉट यूज वेरी मच इनफॉर्मल वर्ड्स इन कैम्ब्रिज. दो हम कर सकते हैं, हमारे पास रूम्स हैं इसके लिए, बट हम कभी करेंगे नहीं, बिकॉज वी आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर द बेस्ट मार्क्स. ठीक है, तो बहरहाल इसके बाद आप बहुत सारे, लेट सपोज मैं एक छोटी सी बात करके मैं यहाँ पे चीज को खत्म कर रहा हूँ. लेट सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शुड, SHOULD. भाई क्या है इसका मतलब, हमें तो पता है कि भाई इसको काम करना चाहिए, लेकिन शुड इज बेसिकली अ ग्रामर, इट्स अ मॉडल वर्ब. ठीक है, एंटर मारो. एंटर मारने के बाद ये कंप्लीट एक तुम्हारे पास चीजें आ जाएंगी. ठीक है, शुड, यूज टू शो, कंप्लीट क्या है क्या नहीं है, इसके मोर एग्जांपल्स देखने हैं. ये है स्मार्ट वोकैबुलरीज रिलेटेड टू द वर्ड एंड फ्रेजेस. ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी.
ये चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी माय डियर। इसके अनदर यूजेज क्या है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगी इस पे, बशर्त ये कि प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी दिस। आप जब तक इसको स्टडी नहीं करोगे आप इसको प्रॉपरली लाइक एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी है, होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। तो इसके